Hello everyone, welcome back to Vidya Setu, YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. So dear students, we were studying chapter 6, Every Drop Counts, and this is part 3 of the video. So dear students, in this video, we will discuss the customs related with the water. Nowadays, from where we get water, and we will analyze, at last we will analyze the water bill, how to look at that, how to identify our water bill, the time period of the water bill. So without wasting time, let's start the video. Customs related to water. कस्टम सामान्य होता है बच्चों कुछ रीति रिवाज, कुछ रिचुअल्स जिसको हम फॉलो करते हैं. इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेप वेल्स एंड नालाज. इवन टुडे मतलब आज भी बहुत से लोग जो हैं वो पुरानी झीलों से, धाराज से, स्टेप वेल से एंड इवन नालाज से, ऐसे नालाज जहां पर शुद्ध पानी जो है बहता है, गंदा पानी नहीं, वहां से फेचअप करते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं. स्पेशली इन द रूरल एरियाज, मीन्स ग्रामीण इलाकों में, नॉट इन द अर्बन एरियाज. इन अर्बन एरियाज we mostly or mainly get water from the pipeline. Many customs and festivals are related to water. There are many customs and there are many festivals that are related with the water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. What happens means at some places after the rain, when the lakes get filled up, the people गैदर मीन्स इकट्ठे होते हैं अराउंड द लेक, उस लेक के चारों तरफ, और सेलिब्रेट करते हैं. बच्चों ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, आप एक मिनट के लिए सोचिएगा घर पे कि अगर अर्थ से जो है पूरा पानी खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा. और यू जस्ट थिंक कि अगर आपकी पाइपलाइन में अ वीक या फिर 10 डेज के लिए वाटर नहीं आता है और आपके घर की टंकी का और जो आपने पानी जहां भी स्टोर किया है वो खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे फिर? लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो वी मस्ट कंजर्व वाटर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. हियर यू कैन सी अ ब्राइड. व्हाट शी इज डूइंग? शी इज बेंडिंग हर हेड and doing some puja or worshipping in front of this some water. Now see the bride of Uttarakhand in this picture. This is the bride of Uttarakhand. After getting married, she has come to the new village. शादी के बाद वो कहाँ आई है? अपने नए गांव में आई है. She goes to the spring or the pond. Goes माने क्या होता है बच्चों? Bow means bending the head or upper part of the body as a sign of respect or greeting. Bow माने होता है अपने हेड को या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को एज अ रिस्पेक्ट या फिर ग्रीटिंग. जैसे आप नमस्ते करते हो ना, तो अपने सर को नीचे झुकाते हो या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को थोड़ा सा नीचे झुकाते हो, तो उसको हम बोलते हैं बो. बेंडिंग द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रीटिंग. So she bows to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. कहीं कहीं पर क्या होता है, जो भी रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो अप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वो घर पे, अब जैसे अर्बन एरियाज में तो इस तरीके की झीलें या फिर लेक्स वगैरह उतनी दिखाई नहीं देती हैं. मेनली हमको पानी कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप that are connected with the pipeline of the local Nagar Nigam. So they worship the tap, means जहां से पानी आ रहा है. Can we imagine life without water? Think for some time. If water is not available for us, then life is possible or not? The answer is no.
Life is not possible without water. Now look at this. There are two old wells in the area where Punita lives. जहाँ पुनीता रहती है वहां पर दो पुराने जो हैं कुएं हैं. Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was water in these wells. उसकी ग्रैंड मदर, उसकी मतलब दादी कहती हैं कि 15 से 20 साल पहले ये जो वेल्स थे, these wells were filled of water. The wells could have dried up because, और लेकिन आज जो है ये कुएं क्या हो गए हैं? ड्राइड अप मीन्स सूख जाना, ड्राई अप और ड्राइड अप. क्यों सूख गए हैं? लेट्स सी द रीजंस. Water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors. क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू जो है, जैसे बोरिंग नहीं हम बहुत सारे लोग कराते हैं कि बस बोरिंग कराने के बाद अपना बिजली का इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया और पानी आने लगता है. तो वहां से अगर हमने पंप अप कर लिया तो यू जस्ट टेल मी कि सपोज जैसे नीचे कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस पानी को अगर हम पूरा बाहर निकाल लेंगे और बारिश का पानी भी यहाँ पर नहीं जा पा रहा है तो हमारा वाटर टेबल मेंटेन नहीं होगा. तो क्या होगा? ये पानी खत्म हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी स्विच को ऑन करेंगे बोरिंग की तो पानी क्या होगा? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इसका पूरा पानी तो हमने यूज कर लिया है. ठीक बच्चों, तो एक रीजन ये भी है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू हमने जो है सारा पानी उसका अंडरग्राउंड वाटर का निकाल लिया है तो वो सूख गया है. The lakes in which rain water used to collect are no longer there. लेक्स जो है हमारा इतना बच्चों अर्बनाइजेशन हो रहा है कि जो हमारी पुरानी लेक्स थी, पॉन्ड्स थी, वेल्स थी, इनको हम भूलते ही जा रहे हैं या फिर ये बन नहीं रहे हैं. तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? रेन वाटर कलेक्ट नहीं होता है और वो सारा रेन वाटर क्या हो जाता है? नालियों के थ्रू ड्रेन आउट हो जाता है जो कि वेस्ट हो जाता है. तो ये भी एक रीजन है जिससे जो है अगर लेक्स में पानी नहीं जा रहा है तो अल्टीमेटली वो जो है अर्थ भी जो है उसको सोक नहीं कर पाएगी, तो हमारा वाटर टेबल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. Now third one is the soil around the trees and parks is now covered with the cement. This is also a big reason कि जो सॉइल है अराउंड द ट्रीज और पार्क्स के उनको हमने सीमेंट से जो है कवर कर दिया है. तो क्या होगा अगर हमने सीमेंट से कवर कर दिया है तो जो सॉइल है दैट इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर, द रेन वाटर. व्हाट विल हैपन? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर एंड दैट रेन वाटर विल गो वेस्ट आउट एंड विल ड्रेन आउट थ्रू द नाली एंड ऑल दैट. इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन. और क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ पर जिससे जो है ये वेल्थ सूख गए? तो मेन रीजन यही है बच्चों कि हम इनका केयर अप नहीं किया, ठीक है, वाटर टेबल को हमने मेंटेन नहीं किया, जो रेन वाटर होता है हमने उसको कंजर्व नहीं किया, जो अर्थ है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिस वजह से जो है हमारा वाटर टेबल डिस्टर्ब हो रहा है और जो है पानी का लेवल जो है बहुत नीचे तक जा रहा है. सो वी मस्ट थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड व्हाट स्टेप्स वी कैन डू टू कंजर्व वाटर. ठीक है, नाउ लुक एट फर्दर स्टोरी टुडे. आज की कहानी क्या है? ये तो पुरानी स्टोरी थी, ठीक है. लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे. हम आज देखते हैं कि आज जो है लोग पानी को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उनके घरों पे आता है पानी. डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दीज वेज? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेज. उनमें से आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके घरों में किस तरीके से पानी आता है, ठीक है. इफ यू गेट वाटर बाय सम अदर वेज राइट इन योर नोटबुक. अगर इनके अलावा आपके घर में किसी और तरीके से पानी आता है देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. यू हैव टू थिंक, बेसिकली यू हैव टू थिंक. दिस इज हाउ वी गेट वाटर. मीन्स हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने घर में पानी को प्राप्त करते हैं. हाउ वी गेट वाटर. नंबर 1, जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. जल बोर्ड का ये टैंकर है, ये हमारी कॉलोनी में 2 बार आता है. वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर. हमको जो है लॉन्ग क्यू माने होता है लाइन में या फिर कतार में, ठीक है. स्पेलिंग है QUEUE, क्यू. प्रोनाउंसिएशन इसका होगा क्यू. टू गेट वाटर.
हमको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है पानी को प्राप्त करने के लिए। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, कभी कभी तो क्या होता है कि लोग लड़ जाते हैं। ऐसा बच्चों ऐसी जगहों पर होता है जहां पर वाटर की स्केसिटी होती है, ठीक है। मेनली दिस हैपेंस ड्यूरिंग द समर व्हेन द वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। तो क्या होता है, वाटर जो है फिर जल बोर्ड टैंकर के थ्रू आता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखो ये जल बोर्ड का एक टैंकर है और ये देखो बहुत सारे लोग जो हैं एक क्यू में खड़े हुए हैं अपना अपना बर्तन लिए, ठीक है। इस तरीके से ये होता है बच्चों कि व्हेन वी गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन वी वेस्ट सो मच ऑफ वाटर, but when we get water through this tanker, people are aware of that there is too much scarcity of water, so they don't waste water, because even a single drop of water is very much important for all of us। ठीक बच्चों, now second one, we fill water from the well। हम क्या करते हैं, पानी को प्राप्त करते हैं कहां से, वेल माने होता है कुआं। द नियर बाई वेल ड्राइड अप अ ईयर एगो, जो हमारा पास का कुआं था वो 1 साल पहले सूख गया है। थिंक वाई, क्यों सूख गया होगा, हमने इसको पहले अभी डिस्कस किया है। नाउ वी हैव टू वॉक फार टू रीच द अदर वेल, अब हमको बहुत दूर जो है जाना पड़ता है। वॉक फार माने बहुत दूर चलकर जाना पड़ता है कुआं से पानी लाने के लिए। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। हमें अपनी कास्ट के कारण बहुत सारे कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता है। बच्चों दिस मेनली हैपेंस इन द रूरल एरियाज वेयर द कास्ट सिस्टम इज नाउ आल्सो फॉलोड, बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द राइट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। लेकिन हमारा संविधान हम सबको बराबर मानता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं जो कि गलत है, दैट इज इलीगल, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, नाउअडेज रूरल एरियाज में क्या होता है, जैसे कि बहुत से लोग जो हैं जहां पर पाइपलाइन नहीं है तो वो अपने कुओं से जो है पानी को फेच करते हैं, ठीक है, और फिर अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करते हैं। नंबर 3 इज वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, हमारे घर में क्या है आधे घंटे के लिए पानी आता है। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, इस पानी को हम क्या करते हैं, ये टंकी को फुल कर लेते हैं, फिर इससे जो है हम पानी को जो है यूज करते हैं। सम टाइम इट इज डर्टी, कभी कभी ये गंदा भी होता है, क्यों, क्योंकि इस टंकी को हमको रेगुलरली साफ भी करना होता है, ठीक है। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, हमारे घर में दिन भर टैप्स के थ्रू पानी आता है। ये टैप्स भी किससे कनेक्टेड रहती हैं, बड़ी बड़ी टंकियों से ही कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, तभी इन टैप से पानी आता है। अगर टंकियों का पानी खत्म हो जाएगा देन दिस टैप्स विल आल्सो रन आउट वाटर। नंबर 5, देयर इज अ हैंडपंप नियर बाई बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी। एक हैंडपंप हमारे घर के पास लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है सॉल्टी पानी आता है, मीन्स नमकीन पानी आता है। मैंने फैक्ट में भी आपको लिखवाया था कि अर्थ का पानी बहुत सारा ऐसा है सॉल्टी है जो हमारे यूज का नहीं है, सॉल्टी वाटर वी कैन नॉट यूज, ठीक है। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमको पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत से लोग हैंडपंप से ही पानी निकालते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमने क्या किया है, जल बोर्ड की जो पाइपलाइन गई हुई है उससे जो है अपनी पाइपलाइन घर की फिट की हुई है, तो जब भी जल बोर्ड की पाइपलाइन में पानी आएगा तो हमारे घरों पे भी आएगा, तो ये भी एक तरीका है। Now next one is we get water from the canal itself, means एक नहर जा रही होती है, हम उससे जो है सीधा पानी को प्राप्त करते हैं, ठीक है। We get water from the canal and we just use it for our different purposes at home. And the last one is we have put a motor to pump up the water from the borewell. हमने क्या किया है, एक बोरवेल बनवाया हुआ है अपने घर में, ठीक है, और हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और उस बोरवेल से क्या होता है, पानी आने लगता है। बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर वहां पे बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। लेकिन अगर हमको ये पता है कि हमारी मोटर्स जो है वो किसके ऊपर रन आउट करती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा पानी भी नहीं आएगा। नाउ लुक एट दिस जल बोर्ड बिल।
अब हम इस बिल को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है कि हमारी बिल डेट क्या है, हमारा बिल अमाउंट क्या है, हमको बिल किस डेट तक भरना है, हमारी रीडिंग किससे कब तक है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बिल, दिस इज अ दिल्ली जल बोर्ड बिल, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मीन्स जल बोर्ड जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। ठीक है, रेगुलर वाटर बिल है। यहाँ पर कुछ चीजों को फेड कर दिया गया है क्योंकि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेम रहता है, यू कैन सी हियर नेम, यू कैन सी हियर द एड्रेस, मोबाइल नंबर, एरिया, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर मीटर नंबर वगैरह हो जाएगा। ये भी हमारे काम की चीजें नहीं है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर वी हैव टू सी द बिल डेट। तो बिल की डेट क्या है? ठीक है, तो ये बिल जनरेटेड डेट ये हमको यहाँ पर दिख सकती है। ठीक है, तो ये बिल किस तारीख को जनरेट किया गया, मीन्स किस तारीख को ये बिल जो है निकाला गया है। तो बिल जनरेट हुआ है कौन सी तारीख को? 18th of January 2018। बिल का अमाउंट क्या है? 5052 मीन्स 5052 रुपीज। इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, बिल ड्यू डेट क्या होती है? ठीक है, बिल ड्यू डेट मीन्स ड्यू डेट का मतलब होता है कि इस डेट के पहले हमको बिल को अपना पे कर देना है। अदरवाइज हम जो है बिल अनपेड की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो 18 जनवरी को बिल जनरेट हुआ था एंड द बिल ड्यू डेट इज 5th of February 2018। मीन्स ये जो पीरियड है हमारा 18 जनवरी से 5 जनवरी के बीच का, इस बीच में हमको जो है अपना बिल पे कर देना है। अगर हम इस ड्यू डेट तक पे नहीं करते हैं हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, तो ये लिख के आ रहा है यहाँ पर देखो, अमाउंट पेएबल आफ्टर ड्यू डेट। अगर आफ्टर ड्यू डेट हम पे करेंगे तो फिर कितना पे करना पड़ेगा? 5305, जो कि इससे बढ़ गया है। कितना? अप्रॉक्स 250-80 के लगभग जो है पैसा बढ़ गया है। ठीक है, तो हमको ड्यू डेट के पहले ही बिल हमेशा पे कर देना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मीटर जो रीडिंग है हम उसको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिख के आ रहा है करंट मीटर रीडिंग और यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रीवियस मीटर रीडिंग। करंट माने होता है मीन्स आज की मीटर रीडिंग, मतलब जिस दिन को ये जो है बिल जनरेट किया गया था, मीन्स 18th of January। तो आज की मीटर रीडिंग क्या है? 4728। ठीक है, ये मीटर रीडिंग है। ठीक है, कितनी है? 4728। और प्रीवियस मीटर रीडिंग मतलब इससे पहले जब बिल जनरेट किया गया था और उसका बिल पे कर दिया गया था वो रीडिंग। ठीक है, तो 13th of November को इससे पहले बिल जनरेट हुआ था। ठीक है, और तब मीटर रीडिंग क्या थी? 4613। तो मीटर रीडिंग यहां से देखो, यहां से बढ़ गई है ना ये, क्योंकि ये करंट रीडिंग है और ये प्रीवियस रीडिंग है। और ये डेट देखो 2017 की आ रही है और ये 2018 की, मीन्स ये पीरियड में भी अंतर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो है मीटर रीडिंग कहाँ से कितने तक चली और फिर हमें सिर्फ वही अमाउंट पे करना होता है। डेज कितने लिया है यहाँ पर? जो हमारी अभी का जो हमारा बिल जनरेट हुआ है वो कितने दिनों का जनरेट हुआ है? 66 डेज का। ठीक है, मीन्स 13 नवंबर से अगर 18 जनवरी तक हम काउंट करेंगे तो हमारे टोटल 66 डेज होंगे। और ये रीडिंग 4613 से 4728 तक देखेंगे तो हमारी जो यूनिट्स होंगी वो 135 यूनिट्स होंगी। और फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट जो है फिक्स किया होगा एक यूनिट पर जितना भी रुपए फिक्स किए होंगे उस हिसाब से हमको अमाउंट पे करना होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको चार्जेस देने पड़ते हैं, वो भी उसमें अमाउंट में एडिड होते हैं और फिर हमारा फाइनली जो बिल होता है वो अमाउंट जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घरों का, सबके घर में कोई ना कोई इस तरीके का बिल आता ही होगा। तो सब क्या करेंगे, अपने घरों में अपना पानी के बिल को निकालेंगे। ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे कि उसकी बिल डेट क्या है, उसकी बिल ड्यू डेट क्या है। ठीक है, और प्रीवियस मीटर रीडिंग क्या थी, करंट मीटर रीडिंग क्या थी और फिर उनका अमाउंट कितना है। ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे और जिसके जो ऐसा करेगा वो एक फोटो खींचकर भी मेरे होमवर्क ग्रुप में सेंड करेगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरियर वगैरह लिख के आ रहा है, इसमें आगे माइनस लिखा हुआ है। तो समटाइम्स क्या होता है हम एक्स्ट्रा पे कर देते हैं या फिर ऑन टाइम पे करने पर गवर्नमेंट हमको जो है कुछ छूट भी देती है कि जो भी लोग ऑन टाइम पे करते हैं गवर्नमेंट गिव देम सम रिबेट।
तो यहाँ पर देखो इनका -716 मीन्स इनका बिल ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे 5768 हो रहा था, लेकिन इनको कुछ रिबेट दिया गया है जिससे इनका बिल में जो है 716 रुपीज को कम कर दिया गया है। उसके बाद फिर इनका बिल जनरेट हुआ। तो अगर हम अपनी बिल्स वगैरह को टाइम पर पे करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमको कुछ छूट भी देती है। इस वजह से हमें अपने बिल्स को जो है ऑन टाइम पे करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने कहा सभी के सभी ये एक्टिविटी भी करेंगे। ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी रिगार्डिंग दिस रेगुलर वाटर बिल। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो है अपना वाटर बिल निकालना है, ठीक है, और उसमें बिल ड्यू डेट क्या है, ठीक है, बिल डेट क्या है, प्रीवियस मीटर रीडिंग क्या थी, करंट मीटर रीडिंग क्या थी, डेज कितने हुए, कितनी यूनिट आई और कितना पैसा है, ठीक है, जो आपको कब तक पे करना है, ये आप उसको एनालाइज करेंगे, लिखेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।